A very good evening to one and all. 23rd October 2020 is Navratri Day 7 of the 9-day long festival of Navratri. Today, Ma Kalaratri Devi is worshipped. Ma Kalaratri Devi is one of the fiercest forms of Devi Durga. She is worshipped on Saptami. On this day, Ma Kalaratri, the seventh form of Ma Durga, is worshipped. Going by the folk tales, when Mata Parvati gave up her golden avatar to kill Shumba Nishumbha, she began to be called as Kalaratri. This is avatar of as Durga is said to be the most dangerous but also very fortunate. Om Devi Kalaratrayi Namaha. या देवी सर्वभूतेषु मी कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Today we have erudite speaker Dr. Gauri Tamankar ma'am. Dr. Tamankar ma'am has completed her MBBS course from Government Medical College, Solapur, Maharashtra, India. She is MD in Medicine, Fellow in Diabetes, CMC Vellore, Fellow in Diabetes, Royal College of Physicians, England, Certified Diabetic Food Specialist, Certified Insulin Pump Therapist, and Certified Diabetes Educated Trainer. Ma'am, your list is unending. Ma'am is also Associated Professor in Krishna Medical College, Garhat, Satara, Maharashtra, India. Besides her academic excellence, she has been successfully directing Madhumitra Advanced Clinic in Karad. She has actively participated in Swachhata Abhiyan and won the state award by Government of Maharashtra for a short film named Swachhata My Responsibility in year 2016. She has conducted Atmabhan series for youngsters in school to deal with changes during puberty. She has been associated with ESA's Special Children Care Center. Dr. Gauri Tamankar ma'am conducted various free online webinars during this period of COVID-19 to educate people about diabetes. Apart from this, her hobbies are gardening, reading, and have a violinist in various music concerts. Ma'am, we are very honored to hear you on this platform on the topic management of diabetes. On the behalf of SKN Sinhagad College of Engineering, Pandharpur, Indology Foundation, Delhi, and SNDT Women's University, Mumbai, I, Mrs. Vaishali Chauhan, taking this opportunity to welcome you, ma'am. Now, I request to Dr. Gauri Tamankar ma'am to please educate us on the exclusive topic management of diabetes. Ma'am, please. Thank you Vaishali, for your sweet word. नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को, मेरी सहयोगियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. I would like to thank Endology founders to giving me this platform to share my thoughts. आज त्योहार का माहौल है तो चलिए कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए डायबिटीज के बारे में, क्योंकि इट्स अ इंटरेक्टिव सेशन एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूंगी, इट्स अ इंटरेक्टिव सेशन. आपको भी जो भी है वो मतलब मन में जो भी है तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे टॉक में आ जाए. तो ये टॉपिक लेने का ये मेरा मूल उद्देश्य है कि जैसे वी ऑल नो अपने हर रोज की जिंदगी में हम ट्रैफिक में गुजरते हैं, तो वी ऑल नो ट्रैफिक रूल्स फ्रॉम चाइल्डहुड. तो अभी हमारा स्टैटिस्टिक जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ. तो हम सबको डायबिटीज के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे खुद को या रिलेटिव को या किसी रिश्तेदार को या कोई किसी फ्रेंड को डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं या डायबिटीज होता है,
तो हम सबको डायबिटीज की जनरल आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। राइट। तो सबसे पहले हम सबको डायबिटीज क्या है इसके बारे में मैं बताती हूँ। सबको ये पता है कि जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो हम सबके ब्लड में शुगर रहती ही है, बिकॉज शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जब वो नॉर्मल से बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो उसके कई रीजंस हैं। तो सबसे पहला है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या फिर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे द कंडीशन विच आर मॉडिफाइबल और द रीजन विच आर नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल मतलब जिसमें लाइफस्टाइल आती है, या फिर बढ़ा हुआ वेट आता है, या फिर हैबिट्स आते हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मोबाइल एडिक्शन है। और जो नॉन मॉडिफाइबल है उसमें हमारा एज आता है, एथनिसिटी आती है, फैमिली हिस्ट्री है, जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और डायबिटीज के सिम्टम्स के बारे में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई और टेस्ट करने के लिए जाओ तो समझ में आता है कि हमारी शुगर बढ़ गई है। तो बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको डायबिटीज है या शुगर बढ़ गई है। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? तो इन 20 to 25% ऑफ पेशेंट ये सिम्टम्स समझ में आते हैं। जैसे बहुत बार मतलब फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाना, या फिर बहुत थर्स्ट लगना, या पानी पीने के लिए बहुत बार ऐसे मन में लगना, या हंगर बढ़ना, या स्लो हीलिंग ऑफ फूड, ब्लरिंग ऑफ विजन, टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तभी समझ में आता है टेस्ट करने के बाद कि डायबिटीज है। लेकिन 80% ऑफ पेशेंट कोई सिम्टम नहीं दिखते। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आफ्टर एज ऑफ 40 यू शुड गो फॉर योर बेसिक ब्लड टेस्ट। ये पहले ये एज 60 तक था, मतलब हम बोलते थे आफ्टर 60 यू गो फॉर दिस टेस्ट। उसके बाद ये 50 तक आया। नाउ इट इज 40, बिकॉज डायबिटीज इज गेटिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे। और अभी बहुत ही हमको पेशेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो एट द एज ऑफ 35, 30 उसमें भी उनको हैवी ब्लड शुगर रहती है। इसलिए हम बोलते हैं अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, आपका वजन ज्यादा है नहीं है, आपको सिम्टम्स है नहीं है, कुछ भी हो जाए आफ्टर 40 यू शुड हैव योर बेसिक ब्लड टेस्ट। तो इंसुलिन क्या है इसके बारे में ये एक बहुत ही सिंपल स्लाइड के जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सेल को शुगर की जरूरत होती है, क्योंकि सेल रिक्वायर्स एनर्जी टू वर्क, एंड शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी इंसुलिन आता है तो इंसुलिन की वजह से क्या होता है, जैसे हमको कोई दरवाजा खोलना होता है तो वहां पे की होल होता है, वैसे हमारे सेल के डोर के ऊपर की होल रहता है। और इंसुलिन वहां पे जाके की होल में वो अंदर जाके सेल का दरवाजा खोलता है, सो दैट शुगर इन द ब्लड कैन गो इनटू द सेल एंड इट विल गिव एनर्जी टू वर्क। तो जब भी टाइप 2 डायबिटीज होता है तो उसमें क्या होता है, तो ये सेल के ऊपर जो की होल होते हैं वो कभी कभार रहते ही नहीं है। इसलिए अगर इंसुलिन नॉर्मल है और वो चिपक नहीं सकता है तो दरवाजा ऑब्वियसली नहीं खुलेगा, और शुगर अंदर नहीं जाएगी, और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रहेगी। और दूसरी बार ये होता है कि अगर आपकी शुगर 300 ग्राम से बढ़ गई है तो आपको इंसुलिन 300 यूनिट लगेगा, और अगर आपके शरीर में वो 200 ही सिक्रेट हो रहा है। इसलिए ऑब्वियसली वो जो 100 ग्राम शुगर जो बढ़ी हुई है वो ब्लड में बढ़ी हुई मात्रा में पाई जाएगी, और आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आपको डायबिटीज है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज में दीज आर द टू मैकेनिज्म। एक तो इंसुलिन डेफिशिएंसी रहेगी, या वो इंसुलिन ठीक काम नहीं कर सकता। में डायबिटीज होता है उनमें इंसुलिन तैयार ही नहीं होता, तो इंसुलिन होता है इसकी वजह से उनको हमेशा बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो अभी इंडिया का स्टैटिस्टिक क्या बताता है, तो इन इंडिया मोर देन 75 मिलियन पीपल्स आर करंटली लिविंग विद डायबिटीज एवरी डे। दैट मीन्स अगर हम पूरे वर्ल्ड का ले लें, इसमें इंडिया के जो भी इंडियंस हैं उसमें 1 in every 6 people with the diabetes in world is from India। तो ऐसा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया विल बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सरपासिंग चाइना। So do we really want to become the capital of diabetes?
डायबिटीज नो, नॉट एट ऑल। तो हम वी कैन मैनेज डायबिटीज, तो हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? तो हम डायबिटीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करेंगे, बिकॉज एजुकेशन इज द मेन सोर्स ऑफ कंट्रोलिंग डायबिटीज। तो जितनी जानकारी हम हासिल करेंगे उतनी ही हमको डायबिटीज कंट्रोल होने में आसानी होगी। तो इसलिए चलिए इस लेक्चर में हम डायबिटीज को अधिकाधिक जान लेंगे इंटरेक्टिव के जरिए। तो ये जानने के लिए हम एक सिंपल इंडियन फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। इसमें दादा दादी है, उनका एज है अराउंड 70 to 78 ईयर। उनको डायबिटीज है, कंट्रोल्ड है, रिटायर्ड है। उनका बेटा है और डॉटर इन लॉ है, और उनकी एक बेटी है जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। तो सडनली मतलब उनको कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, और उनके डॉटर इन लॉ का ब्लड टेस्ट किया तो तभी पता चला फर्स्ट टाइम कि रिसेंटली गॉट डायग्नोज विद डायबिटीज। उनको पहली बार पता चला कि उनको है। तो लेट्स सी द थॉट दैट वुड पॉप अप इन हर माइंड। तो उनके मन में क्या ख्याल आएंगे, उनके घर वालों के मन में क्या आएंगे, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले उसके मन में आएगा डिनायल, मतलब ये गलत है, ये नहीं हो सकता, हम किसी और लैब से करके देखेंगे ताकि कोई अच्छा रिजल्ट आएगा, शुगर भी नॉर्मल आएगी, तो मैं डायबिटीज का पेशेंट रहूंगी ही नहीं। सेकेंड थॉट आएगा बार्गेन, मतलब जब मैंने उस दिन कुछ तो स्वीट खाया होगा इसलिए ये बढ़ गई होगी, तो मैं थोड़ा करेला का रस पी के देखती हूँ या थोड़ा फिर एक्सरसाइज करके देखती हूँ, मे बी मेरी शुगर नॉर्मल आ जाए। फिर कभी डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं कि अभी क्या होगा, अभी डॉक्टर कुछ टैबलेट्स देंगे, फिर वो पूरी जिंदगी भर मुझे लेने पड़ेंगे, या कुछ अभी डाइट होगा, मैं सब कुछ खा नहीं सकती। कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि वो कॉर्नर के वो नुक्कड़ वाले शर्मा जी हैं, उनको तो कितनी सालों से डायबिटीज है, उनको तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे भी कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं। कभी ग्रीफ आएगा, सैडनेस आएगा, मतलब ये बहुत सारे निगेटिव थॉट्स मन में आएंगे। कंफ्यूजन भी होगा कि क्या करेंगे, कोई बोल रहा है ये करो वो करो। तो इस चीज के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब थॉट्स मन में आएंगे, फिर भी आपको इसको सरपास करके आपको एक्सेप्टेंस में जाना है। क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज बी एट द 3 लेवल्स। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड इसके बाद मेडिकेशन। तो एक्सेप्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? अब जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे डायबिटीज है, ये फैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि ये जो मॉडिफिकेशन है वो अपने लाइफस्टाइल में करना है। तो वो करने के लिए आप करना पड़ेगा कि हाँ मुझे डायबिटीज है, और वो भी बहुत ही अच्छा वर्ड वहां पे है कि एक्सेप्टिंग द फैक्ट विद ग्रेस। मतलब ऐसे मन में कुछ निगेटिव ख्याल आके वो एक्सेप्ट करके कुछ फायदा नहीं है। अभी डायबिटीज है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे क्या करना है। इसलिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। मतलब जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे, और उतना जल्दी आपका डायबिटीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो हम 4 हेडिंग के अंडर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द डाइट, सेकेंड इज एक्सरसाइज, थर्ड इज स्लीप, एंड फोर्थ स्ट्रेस, और उसके बाद में मेडिकेशन आएगा। तो डाइट की तरफ देखेंगे तो हमारे इंडियन में इतने सारे त्योहार रहते हैं, इतने कल्चरल डिफरेंस भी है हमारे इंडिया में, लेकिन फिर भी हम नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे या ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे, बहुत ही वैरायटी ऑफ फूड, लेकिन फिर भी एक चीज उसमें कॉमन है, दैट इज अवर फूड इज वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो अभी कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट गिव यू एनर्जी, मतलब कैलोरीज। तो ये कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा रहेगा उतनी कैलोरी काउंट बढ़ेगा, और जितना कैलोरी काउंट बढ़ेगा उतनी शुगर तैयार होगी, और वो कम करने के लिए, फिर अगर वो कम नहीं हुआ तो वो डिपॉजिट रहेगा, और वो डिपॉजिशन फैट के स्वरूप में रहेगा, और उसे फिर मोटापा बढ़ेगा, उसके और इंसुलिन लगेगा, ये विशियस साइकिल हो जाएगा। इसलिए डाइट में ये 3 मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज पोर्शन साइज, मतलब वो प्लेट प्लानर की स्लाइड में आगे दिखाने वाली हूँ। सेकेंड इज टाइमिंग ऑफ द फूड, इट इज टाइमिंग एट विच यू हैव योर फूड एंड द टाइमिंग बाय विच यू हैव योर फूड, the types of food, that is what are the contents of your food.
and the glycemic index. What is प्लानर? प्लेट प्लानर में हम अगर अपना नॉर्मल प्लेट अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारा अपना जो भी कुछ खाते हैं वो राइस और रोटी के बिना पूरा ही नहीं होता, क्योंकि दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी अगर प्लेट डिवाइड की तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सिर्फ 1/4 प्लेट है, 1/4 प्लेट फॉर प्रोटीन। और अगर आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन का सोर्स आपके लिए बहुत बढ़ता है, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर स्प्राउट या चीज रहता है, वेगान वाले लोगों को वो भी नहीं रहता है। तो फिर प्रोटीन का 1/4 पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाफ ऑफ द प्लेट लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट, फ्रूट्स। तो आपको ऐसे ही अपनी प्लेट डिवाइड करनी है। और ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप राइस नहीं खा सकते, आप रोटी नहीं खा सकते, आपको सिर्फ जो कड़वा है वो खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक जलेबी खाई तो ये जलेबी से आपको 300 ग्राम शुगर आपकी बढ़ेगी। तो वो कम करने के लिए आपको रात को 1 घंटा ज़्यादा घूमना पड़ेगा, वो आप करते नहीं हो। उसके साथ में और एक चीज़ होती है, अगर आपने एक जलेबी खाई तो आप बाकी का जो भी आपका लंच है या डिनर है वो स्किप नहीं कर सकते। इससे बहुत ज़्यादा कैलोरी काउंट बढ़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप स्वीट मत ही लो, क्योंकि स्वीट से कैलोरी काउंट बढ़ेगा, स्वीट से आपके अंदर जो भी शुगर है वो भी एकदम से बढ़ जाएगी, इसलिए स्वीट नहीं बोलता है। तो आपको कोई नहीं खा भी सकते हैं, उसके बाद में उसका पोर्शन साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्योंकि आम आपको आम पसंद है तो भी हम बोलते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप 2 या 3 उसके कटे हुए पीसेस ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हमने 2-3 कटोरी आम रख लिया तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा पूरियाँ भी लेते हैं, तो इससे शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए पोर्शन साइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि आपने कुछ भी खाया तो इससे आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। सिर्फ पानी ये जो चीज है इससे अपने शरीर में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी, बाकी आप कुछ भी मुंह में डालो उससे शुगर की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं उससे शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है, जैसे रॉकेट जैसे बढ़ेगी। कुछ चीजें हैं उससे शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप रोटी खा रहे हैं, आप अगर राइस खा रहे हैं तो उससे शुगर की मात्रा रॉकेट जैसे बढ़ती है। और स्प्राउट खाया, एग खाया तो उससे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, उससे शुगर की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपको रोटी खानी है या आपको राइस खाना है तो आप ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो इनका हाई है वो कम कर सकते हैं, वो कम करेंगे। अगर आपको एक खानी है तो आप कटोरी सलाद, एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, ये खाना है तभी आप एक रोटी खा सकते हैं। अगर आपको 2 रोटियां खानी है तो ये सब 2-2 कटोरी खानी है, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा और उसकी शुगर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। वही सेम चीज राइस के लिए है। अगर आपको राइस खाना है तो उसके साथ में आप थोड़ा राइस ले लो और उसका डबल आप उसमें दाल ऐड कर लो या स्प्राउट्स ऐड कर लो, ताकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। सेम चीज विद द पोहा, उपीट, उसमें अगर आप स्प्राउट डालेंगे, चीज डालेंगे, पनीर डालेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है एक्सरसाइज। तो मेरे कई सारे पेशेंट्स हैं, अभी जैसे ही उनको शुगर की मात्रा बढ़ गई है ऐसा रिपोर्ट आया तो उसी दिन शाम को जाके स्पोर्ट्स शूज, ट्रैक सूट, फिटनेस बैंड सबकी खरीदारी होती है। फिर दूसरे दिन 4 किलोमीटर का वॉक होता है। 2 दिन के बाद वो 4 किलोमीटर का वॉक 2-3 किलोमीटर तक आता है और बाय एंड ऑफ द वीक वो वॉक रुक। या फिर मेरे कई सारे बुजुर्ग पेशेंट हैं, वो सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन उनका मॉर्निंग वॉक वॉक कैसे रहता है? वो सुबह उठते हैं, वो आराम से पॉलिटिक्स पे चर्चा करके चलते रहते हैं, फिर चाय पे गरम चर्चा होती है, फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर पे चर्चा होती है और वो 1-1.5 घंटे में घर आते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पे बताने वाली हूँ, लिखा है कि रेगुलर। तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही रेगुलर होना इतना ज़रूरी है, जैसे हम खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं,
वैसे ही हमें एक्सरसाइज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ, मतलब उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, वो करना ही है। तो वो करने के लिए वहां पे फिट, ये निमोनिक है, जैसे फिट एफ इज फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब हफ्ते में आप कितनी बार वो करते हैं। तो आइडियल इज 150 मिनट पर वीक इज द मिनिमम। आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, कोई हर रोज करेगा, कोई 20 मिनट हर हफ्ता करेगा, आप कर सकते हो। इंटेंसिटी मतलब वेदर इट इज अ हाई इंटेंसिटी है, मॉडरेट इंटेंसिटी है, या लो इंटेंसिटी वर्कआउट है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट इंटेंसिटी, नेवर गो फॉर द हाई इंटेंसिटी इनिशियली। उसके बाद आएगा टाइप। टाइप में हम निमोनिक देते हैं, जैसे सेफ। सेफ का मतलब है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ए फॉर एरोबिक एक्सरसाइज, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ई फॉर इंड्योरेंस। तो हम हर एक चीज देखेंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मतलब एनारोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी है। तो एरोबिक में रहता है कि हम कोई भी चीज, मतलब जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, या फिर ट्रेडमिल है, हम चलते हैं तो हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी, हम कोई भी चीज करते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं था, जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या स्क्वाट्स लगाते हैं, उसमें हम हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और उससे मसल बिल्डिंग होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय ओल्ड एज पेशेंट, मतलब जो जिन पेशेंट को फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उनका आर्क ऑफ मूवमेंट बढ़ता है, जैसे योगासन है, सूर्य नमस्कार है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उनको चलने में आसानी होती है। एनी एक्सरसाइज विच विल बी विच यू आर डूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब मैराथन रनिंग है, या स्विमिंग फॉर लाइक 2-3 टाइम्स, या फिर आप कहीं हिल पे चढ़ रहे हैं, तो ये सब इंड्योरेंस में आएगा। तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि जैसे ही पेशेंट को डायबिटीज पता चलता है, ऑन द नेक्स्ट डे दे स्टार्ट वॉकिंग। तो सिर्फ वॉकिंग इज नॉट यूजफुल, क्योंकि वॉकिंग से सिर्फ आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, लेकिन बाकी सब आपको बेनिफिट लेने हैं, तो यू शुड डू ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस। मतलब वहां पे थोड़ा स्ट्रेंथनिंग भी रहेगा, थोड़ा एरोबिक रहेगा, योगा रहेगा, प्राणायाम रहेगा, फिर आप ट्रेडमिल भी करेंगे, फिर उससे वेट लिफ्टिंग भी करेंगे, कोई वाटर बॉटल लेके वेट लिफ्टिंग करता है, ये सब चीजें आप तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद में टाइमिंग, यूजुअली वी प्रेफर मॉर्निंग टाइमिंग, लेकिन अभी पेशेंट कोई शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है या उनका ऑफिस टाइमिंग रहेगा, तो वो टाइमिंग के लिए हम बोलते हैं कि आपको जब भी टाइम रहेगा आप आराम से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइज आई प्रिस्क्राइब इज 15 मिनट वॉक आफ्टर ईच मील, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, मॉर्निंग लंच के बाद और डिनर के बाद आप 15 मिनट का वॉक कर लो। लेकिन ये वॉक करते समय एक चीज याद रखना, क्योंकि आराम आराम से चलने से आपकी शुगर बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक मतलब आप अगर चलते समय बोल नहीं सकते हैं, या फिर आप चलते समय गाना नहीं गुनगुना सकते, तो आपका स्पीड करेक्ट है। तो उतनी स्पीड से अब अगर आप 15-15 मिनट वॉक हर खाने के बाद करेंगे, तो 45 मिनट वॉक हो जाएगा, और डेफिनेटली आपकी शुगर कम हो सकती है। तो ये इसीलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डाइट के बारे में भी बोलूंगी और एक्सरसाइज के बारे में भी बोलूंगी कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग यू शुड डू टेलर मेड वर्कअप और टेलर मेड डाइट। मतलब हर एक को हर एक्सरसाइज सूट नहीं करता। अभी पेशेंट को अगर न्यूरोपैथी है, या फिर उसको टिंगलिंग नमनेस है, उसको इंसेंसेट फुट है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि पैर में कुछ चुभ गया, तो उसको हम कभी भी वॉकिंग का एक्सरसाइज नहीं देते, उसको स्टैटिक साइकिलिंग बोलते हैं, चेयर योगा बोलते हैं। अगर पेशेंट को कुछ रेटानोपैथी है या आई प्रॉब्लम है, तो उनको स्ट्रेंथनिंग या इंड्योरेंस एक्सरसाइज हम प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि उससे रेटानल डिटैचमेंट या फिर सडन ब्लाइंडनेस होने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत ज्यादा करने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री लेके उनका प्रीवियस एक्सरसाइज का
उनका स्टैमिना कितना है, उनको कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उनका डायबिटीज का ड्यूरेशन कितना है, वो सब देख के ही उनको एक्सरसाइज करना है। इसलिए अभी आप अगर टेलर के पास जाते हैं तो अपने नाप का ड्रेस सिला के लेते हैं, वैसे ही हर एक का बॉडी कंपोजिशन, फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। इसलिए हर एक को एक्सरसाइज टू बी टेलर मेड और इंडिविजुअलाइज। हर एक का डाइट मस्ट बी टेलर मेड, और हर एक मतलब जैसे डाइट का है वैसे ही एक्सरसाइज का है। एंड दीज आर द टू कॉर्नर स्टोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट अच्छी तरह से कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी शुगर 50% कम होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद में जो भी बढ़ेगा, जो भी बढ़ी हुई शुगर है, उसके लिए हम मेडिकेशन देने के लिए है ही। तो ये है एक्सरसाइज के बारे में। फिर हमने डाइट के बारे में जाना। फिर उसके बाद आएगी स्लीप। ये स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे एजेड पेशेंट हैं, उनको लगता है कि डिस्टर्ब स्लीप इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डायबिटीज और स्लीप का बहुत गहरा संबंध है। So 7 to 8 hours of sleep, uninterrupted sleep is very important for rejuvenation of body, for for freshness of the mind। ये बहुत important है। कभी कभी अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो रात में बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो स्लीप डिस्टर्ब रहती है। लेकिन डिस्टर्ब स्लीप इज डिफरेंट, और ये स्लीपलेसनेस इज डिफरेंट। तो स्लीपलेसनेस क्यों आता है? कभी कभी डायबिटीज के पेशेंट में, अभी यहाँ पे लिखा है मैंने कि डू यू नो व्हाट यू मीन बाय स्लीप एप्निया सिंड्रोम। तो ये डायबिटीज के पेशेंट में बहुत कॉमन होता है, और जनरली पार्टनर कंप्लेन करता है कि ये पेशेंट को है, क्योंकि स्नोरिंग रात को होता है, या फिर रात को उनको ब्रेथलेसनेस होता है, या घबराहट होकर वो रात को उठ जाते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द ओवरवेट एंड द शॉर्ट नेक। उनकी नेक शॉर्ट होती है, उनको रात को ब्लॉकिंग सेंसेशन होता है। और ये इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि है जब भी हम बोलते हैं पेशेंट को, मतलब हिस्ट्री पूछते हैं, तब पेशेंट हमको बोलता है हाँ होता है मुझे ये भी। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार पेशेंट को नहीं समझ में आता, या फिर पेशेंट को डिस्टर्ब स्लीप रहती है, स्लीपलेसनेस रहता है, रात को ब्लॉकिंग सेंसेशन, चोकिंग सेंसेशन होता है, और दूसरे दिन उनको दिन भर बहुत गहरी नींद सोते हैं वो दूसरे दिन। तो इसके लिए जैसे हम कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इसलिए उनको ईसीजी निकालते हैं, तो सब वेरी कॉमन है, सबको पता होता है। वैसे ही स्लीप स्टडी हम कर सकते हैं, जिस उनको ऐसे ब्लॉकिंग सेंसेशन आता है, उनको वो क्या प्रॉब्लम आती है वो समझ में आता है, और इसके लिए सीपैप, बाईपैप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटी अवेलेबल है। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है या स्लीप के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कि इस एज की वजह से हो रहा है, ऐसे नहीं है। आपको अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स भी बताती हूँ, क्योंकि अभी यंग जनरेशन में हमने जो भी उनको मतलब ये है एडिक्शन है, उसमें मोबाइल एडिक्शन, कंप्यूटर एडिक्शन डाल दिया है। लेकिन मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अबाउट 60 है, 50 है, उनको दे आर एडिक्टेड फॉर मोबाइल। तो ये हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अगर आप सोने जा रहे हैं तो 1 आवर ऑफ स्क्रीन, मतलब मोबाइल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप रहेगा, टीवी रहेगा, 1 आवर कंपल्सरी ऑफ स्क्रीन जाना है आपको। और सोते समय ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और आपको अच्छी गहरी शांत नींद आनी ही चाहिए, बिकॉज दिस इज द इंडिकेशन ऑफ योर नॉर्मल हेल्थ। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। के बाद में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ, और ये बहुत इग्नोर टॉपिक है, क्योंकि ज्यादा लोग इसके ऊपर नहीं बोलते हैं। लेकिन डायबिटीज और मेंटल हेल्थ का बहुत ही गहरा संबंध है। अभी बहुत सारे कोरोना पैंडेमिक में मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो घर में है, उनको कहीं बाहर जाने के लिए हम अलाउड नहीं करते हैं। तो ये अलाउड नहीं किया तो उनका ऐसे मतलब बहुत अकेलापन रहता है, निगेटिव थॉट्स मन में आते हैं, और इसकी वजह से उनकी शुगर बढ़ना चालू होती है। क्योंकि क्या होता है, अभी अभी 10,000 साल पुराना अगर हम सोचे, तो वहां पे क्या था, जंगल में रहते थे हम, तो वहां पे कुछ भी हो जाने के बाद उनको दो ही ऑप्शन रहते थे, एक तो फाइट या फ्लाइट। मतलब उनको लड़ना है वो सिचुएशन में, या फिर वहां से दूर भागना है। तो वो दोनों चीजें के लिए उनको फिजिकली फिट रहना पड़ता था, और फिजिकली फिट रहने के लिए उनको एनर्जी लगती थी।
और अभी तो हमने देखा है कि एनर्जी का मेन सोर्स रहता है शुगर। तो कभी भी कोई भी स्ट्रेस आया, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, तो हमारे शरीर में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से शुगर बढ़ना चालू होता है और इंसुलिन ऑटोमेटिक इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है। तो इतना क्लोज रिलेशन है स्ट्रेस और शुगर का। तो यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ गया, उधर पे शुगर बढ़ना चालू हो गई। तो ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब ब्लड शुगर लेवल को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि नेवर निग्लेक्ट योर मेंटल हेल्थ। हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके मन में जो भी है ख्याल है, वो आप डिस्कस करिए, आपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, आपके मन को ऑक्यूपाई रखिए। आपको जो भी हॉबीज है, मतलब गाना सुनना है, रीडिंग है, या फिर गप्पे मारना है, कोई भी या किसी की श्रद्धा है, तो वहां पे आप अपने मन को ऑक्यूपाई रखें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स ही मन में आना है, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा रहने वाली नहीं है। तो अपनी डिफरेंट हॉबीज में आपको ऑक्यूपाई रखिए, एक्टिविटीज में ऑक्यूपाई रखिए, एक्सरसाइज करिए। इससे आपकी मन की शांति बरकरार रहेगी। और लेट योर माइंड स्माइल, क्योंकि ये जो भी डायबिटीज है वो सब सिर्फ आंकड़े हैं। मतलब ये शुगर बढ़ गई, कम हो गई, फिर भी अपना ये जो भी ये शुगर के वैल्यूज है वो और हमारा जीवन दोनों अलग है। तो ये वैल्यूज तो है ही, लेकिन फिर भी इतनी सब चीजें हैं जिसके ऊपर ये डायबिटीज डिपेंड है, वो तो अपने हाथ में है। तो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपने डाइट देखा, एक्सरसाइज देखा, स्लीप, दिस अ वेरी निग्लेक्टेड टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेंटल हेल्थ। और एक चीज याद रखनी है कि डायबिटीज की जर्नी में खुद को आप कभी भी अकेला मत समझना, क्योंकि हमारी फैमिली है, तुम्हारे डायबिटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो लेट योर माइंड स्माइल, ये हमारा बहुत ही अच्छा स्लोगन है, वो हमेशा हम पेशेंट को बोलते हैं। के बाद में सबसे बाद में आएगा मेडिकेशन। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मुझे बोलनी है। एक तो बहुत बार मेरे पेशेंट ऐसे करते हैं कि ये पेशेंट को ये दवाई से अच्छा हुआ, इसलिए वो गोली हमने ट्राई करके देखी। तो सेल्फ मेडिकेशन यू शुड नेवर डू। या फिर अगर किसी और के कोई और चीज है, कोई और पैथी है, कोई कही बातें हैं, सुनी बातें हैं, पढ़ी बातें हैं, वो सब अपने खुद के ऊपर कभी भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि किसी और को जिससे बेनिफिट होगा वो आपको होने वाला है ही ऐसे नहीं है। तो ऑलवेज डिस्कस विथ योर डॉक्टर, विथ सर्टिफाइड हेल्थ प्रोवाइडर डॉक्टर, और उनको डिसाइड करने दो कि आपको दवाई कौन सी देनी है। क्योंकि ये अगर आपने सिंपल ओवर द काउंटर कुछ भी मत लीजिए, क्योंकि सिंपल कफ सिरप भी अगर आपने लिया, उसका बेस अगर शुगर है, तो आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो इस कोरोना पैंडेमिक में आप और एक चीज कर सकते हैं, घर में बैठ के आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। दिस इज नाउ लीगली अप्रूव्ड इन इंडिया। तो अगर आपको बाहर जाना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए। लेकिन डेफिनेटली आप सर्टिफाइड डॉक्टर से सलाह लेके ही आपकी टैबलेट आप ले लीजिए या डोज आपका डिसाइड कीजिए। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन के बारे में इतने सारे मिथ्स है कि मतलब इंसुलिन चालू किया तो सबको लगता है कि अभी मेरी शुगर इतनी अनकंट्रोल है, मुझे इंसुलिन की जरूरत पड़ी। तो ऐसा नहीं है। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कब देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर न्यू गाइडलाइंस हम जैसे जैसे अभी 2 दवाइयां है विद द फुल डोज, तो इंस्टेड ऑफ हम इंसुलिन चालू करते हैं सो दैट रिमेन नॉर्मल, सो दैट योर कॉम्प्लिकेशन बी अवॉइडेड। एंड ये हमेशा याद रखना, जो भी आपको पूछना है वो अपने डॉक्टर से पूछ के, उससे उनकी सब जो भी है वो पूछ के, उनसे सलाह लेके, उसके हिसाब से ही आप मेडिकेशन कीजिए। क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी हजार्डस और डायबिटीज में बहुत बार होता है। इसे बहुत बार पेशेंट दवाइयाँ बंद करके आते हैं। इंसुलिन अगर हमने प्रिस्क्राइब किया तो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर 2-3 सालों के बाद जब भी कॉम्प्लिकेशन होगा तब आएंगे। इसलिए हमारे दो बहुत अच्छे एम रहते हैं। वन थिंग इज यू हैव टू नॉर्मलाइज योर ब्लड शुगर, देन सेकेंड इज यू हैव टू अवॉइड योर कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। तो ये दोनों करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्सेप्टेंस है और मेडिकेशन है, ये 3 कॉर्नरस्टोन है। तो इसके बाद में अभी
मैंने एक चीज़ बोली कि आपके फैमिली आपके पास है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम एक फैमिली की तरफ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रेशर बना रहता है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, हम किसी रिश्तेदार के घर गए, उन्होंने कुछ स्वीट ऑफर किया और हमने नहीं लिया। ये कुछ अलग तरीके से होता है, ये होता है। तो मैं आगे जाके बोलती हूँ कि डायबिटीज तो पेशेंट की जिम्मेदारी है ही, लेकिन इसके साथ में फैमिली की भी है और इसके साथ में कम्युनिटी की और अपने समाज की भी है। क्योंकि अगर अभी त्योहार है या फिर कोई सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए मिठाई बांटी जाती है। तो मेरे पेशेंट को ना बोलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको प्रेशर आता है। तो ये समाज की भी जिम्मेदारी है क्योंकि द रेशियो इज सो हाई दैट इज 1 in 6 पर्सन। तो मैं एक सिंपल चीज मतलब एक आउट ऑफ द वे लेकिन ऐसे बोलती हूँ कि अगर हम कोई पार्टी है तो वहां पे मेरे पेशेंट गए तो उनको कुछ खाने के लिए नहीं होता है, वो ऐसे ही देखते रहते हैं या सूप से सैलेड लेते हैं। तो मेरा एक सजेशन ऐसा है कि ऐसे पार्टी में अगर हम काउंटर लगाएंगे, जैसे जैन काउंटर रहता है वहां पे अलग से फूड बनता है, तो वैसे ही उसको डायबिटीज काउंटर नहीं, उसको हेल्दी काउंटर बताएंगे हम। वहां पे पूरा हेल्दी सैलेड रहेगा, सूप रहेंगे, देयर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ, तो वो वहाँ पे हम रख सकते हैं ताकि मेरे डायबिटिक पेशेंट भी वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। या फिर कोई होटल में गया तो वहाँ पे मेनू कार्ड में इंस्टेड ऑफ डायबिटीज मेन्यू यू कैन डाउन लाइक हेल्दी मेन्यू, तो वहाँ पे भी वो मेरे पेशेंट एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी का भी बहुत सारा रोल है। अभी रिसेंटली हमने हमारे यूनिट में एक रिसर्च किया, 100 पेशेंट में एक क्वेश्चनर दिया था, तो उसका रिजल्ट बहुत ही डिसहार्टनिंग आया। मोर देन 75% ऑफ द माई पेशेंट दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम द कम्युनिटी फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक फॉर मॉडिफिकेशन इन their डाइट एंड इन their एक्सरसाइज। तो ये अपने समाज की भी मेरी जिम्मेदारी है कि ये पेशेंट को समझे, ये पेशेंट को कोई चॉइसेस रखे कि ताकि वो भी हमारी तरह लाइफ एंजॉय कर सके। So, as the cases of diabetes are increasing at an alarming rate, it's high time to start working towards managing diabetes and very importantly, preventing it. So, we as a society need to work together. Social pressure, जैसे मैंने बताया, plays a major role in diabetic management too. So, let's stay united, support people with diabetes, be aware, and most importantly, enjoy life. एंड वो लाइफ एंजॉय कर डायबिटीज पेशेंट को एंजॉय करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब भी ऐसे डिप्रेसिव ख्याल आते हैं कि ये डायबिटीज मुझे क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे ही क्यों हो गया, तो इसका एक जवाब मैं देना चाहती हूँ कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो हाँ, ये दोस्ती में डायबिटोलॉजिस्ट भी आएगा, फैमिली भी आएगी और कम्युनिटी भी आएगी। तो थिंक ओवर, स्टे सेफ। एंड नाउ दिवाली आ रही है और नवरात्रि भी है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. यस, थैंक Thank यू। you very much, Gauri ma'am. या, थैंक यू। Just a minute. यस। Good evening to all participants of Navratri Talk. थैंक यू। I wish to record a sincere appreciation to Dr. Gauri ma'am for a very helpful speech on management of diabetes. I'm very grateful to Dr. Gauri ma'am to enlighten us about management of diabetes. Your suggestion on when, why, how to check your blood sugar is helping. Great analogy on how insulin works. Your elaboration on glycemic index, food types, exercise, the mantra of fit, frequency, intensity, types, and time is great. Acceptance, lifetime modification, and medication is the key to control diabetes fast. Diet is most significant part.
and will great help to patients. Your every suggestion, how to go out and what the person should carry will help the patients. The precaution patient has to take and notice while sleeping is great help. Stay away from screen before you sleep. How mental health is important and how we get rid of negative thoughts. Your advice is really will impact positively on patient and it is too important. You said rightly, mental health is really an important part of everybody's life now. Your insights on health and educate us upon it is beneficial. You nicely told and educated us what is the family and society's responsibility to a sugar patient. It is my pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of SNDT Women's University, Mumbai, SK Sinhagad College of Engineering, Pandharpur, and Indology Foundation, Delhi, to all who have helped to make this event such a success. Thank you, Sri Lalit sir, founder of Indology Foundation. Thank you, Principal Dr. Kailash Karande sir, Sinhagad College of Engineering, Pandharpur. Thank you, Dr. Deepak Deshpande sir, SNDT Women's University, Mumbai. Thank you, Aman, host of the event. Thanks are also to other staffs and personnel involved in the program directly or indirectly. To conclude, let me once again reiterate my gratitude to all. Thank you. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you.